Hello everyone, welcome to my channel CS Legal World, and today we are revising a chapter which is under GST, and that is account and records. So accounts and records में firstly we have to understand कि section कौन सा पढ़ना है, rule कौन सा पढ़ना है. Section पढ़ना है 35 and 36 and rules पढ़ना है 56, 57 and 58. इसमें eligible assessee कौन होगा? तो सबसे पहले 35 1 जो है वो ये बोलना चाह रहा है दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है हैज़ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. इतना हमको समझ में आया दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू मेंटेन अ बुक्स ऑफ अकाउंट एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. नाउ व्हाट आर द काइंड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दैट दे हैव टू मेंटेन? So it has been specified as 6 books that the person has to maintain, like the every registered person has to maintain at principal place of business, and that is जो भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स का या फिर सर्विसेज का. प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, खैर सर्विसेज का तो ऑफकोर्स गुड्स का ही होगा. सो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इसका जो भी बुक्स है वो मेंटेन करना पड़ेगा. इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई. इनवर्ड सप्लाई मतलब इनवर्ड जो परचेजेज है आपके और आउटवर्ड जो सेल किया है आपने, वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे. देन बैलेंस स्टॉक ऑफ गुड्स, आईटीसी आपने जितना अवेल किया है वो. आउटपुट टैक्स पेड, जितना टैक्स पे कर चुके हो और जितना पेबल है वो, उसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने. एंड अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. सो बेसिकली दीज आर द 6 points or 6 books that every registered person has to maintain at principal place of business. So I'll repeat it again. What are the books as? I'll repeat it again for you all. That production, manufacture of goods, inward outward supply, balance stock of goods, ITC availed, output tax paid or payable, and others as may be prescribed. This is 35(1). So when we talk about 35(2), it says that जो भी अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सो वी आर डूइंग 35(2) विथ रूल 58. सो रूल 58 के अंदर ये सारी डिटेल्स दिया गया है. अब इसमें क्या बोला गया है, बेसिकली ओनर हो अगर वेयरहाउस के या फिर गोडाउन के या फिर यू आर अ ट्रांसपोर्टर. व्हाट डिड आई से? इफ़ यू आर एन ओनर ऑफ अ वेयरहाउस or a godown, so you might have some of the uncles who are the owners of warehouse, or friend of your dad who are owner of godown, or your dad or any of the friends of your dad are a transporter itself, like my dad is a transporter. So if I relate this, so basically I'll just relate it to the point that my dad is a transporter and one of his friend is an owner of godown. So basically I'll see this as per their point of view, that okay, my dad is a transporter and one of his friend is the owner of the godown. So this clause is applicable to them, like what are the kind of books that they have to prepare or what they exactly have to do. So what are the accounts that to be maintained by my dad or his friend? So one of the accounts are consignor, consignee, he has to maintain. Other relevant as may be prescribed. So consignor and consignee I understood, okay fine, he has to maintain that. Such unregistered person, first of all we are talking about unregistered person. So if you can see that in 35(1) we are talking about if every registered person has to maintain this book, and 35(2) we are saying the unregistered person but who are owner of a warehouse or a godown or a transporter himself. So he has to maintain the following books, which is consignor, consignee, other relevant books. So such unregistered person shall get himself enrolled over common portal, over electronic common portal basically. So what my dad has to do in this? My dad has to simply get registered himself through the electronic common portal, and he has to apply in form GST ENR 01. So he would be granted with unique enrollment number. So once he get the unique enrollment number, that if he, for example, if he has got unique enrollment number for one state, so if he has got unique enrollment number for one state, it would be deemed unique enrollment number in any other state also. So one unique enrollment number would deemed as unique enrollment number for all the state. And this is again specifically for my dad. So if registered person
So for example, we are talking about transporter now. So let's say if my dad even a registered person, so not for example, my dad is a registered person under GST. So if he's a registered person under GST, then also he opt for unique enrollment number. So he in GST ANR 02. So basically, what did I say just now? That we are talking about, see, we understood about registered person under this, that he has to maintain these kind of books and all that. In 35(2), what did I say? That unregistered person, but who? Owner of the warehouse or the godown or transporter himself, my dad or any one of his friend, if he has to maintain the following books, that is consigner, consignee, other relevant book. So he has to get himself registered under electronic common portal and apply and form GST ANR 01, and he would be granted with unique enrollment number. One unique enrollment number in particular one state would be deemed as unique enrollment number in for all the states. So now I'm specifically talking about my dad, like he's a transporter and of course he's registered under GST. Then if he wants to opt for unique enrollment number, so he has to file the form which is GST ANR 02 and not GST ANR 01, because he is registered here. So basically, if all this person, if they are unregistered, so they would file under GST ANR 01, and by a chance, if a transporter is a registered person, in that case he has to file he has to fill the form under GST ANR 02. And he has like if the registered person in more than one state UT having the same PAN. So my dad is a registered person under GST in more than one state UT having the same PAN. So for example, if he has a different place of business, still if what do I conclude it as? So he's a registered person. First of all, I got that he's a transporter, he's a registered person in more than one state या फिर UT, ठीक है, in more than one state या फिर UT having the same PAN. So of course if I say the trucks goes all over India, they get all over India permit, and for specific locality wise as well, specific state wise as well. So for example, not for example, my dad has got real like all India permit. So of course he is registered under GST not for one state only, that is Maharashtra. His vehicle go to all the other states all over India. So in more than one state or UT, he is having the same PAN and he is registered under the GST with the same PAN. In that case, he has to file GST ANR 02. So I hope I was very clear with this one. So now the question arises, what would be the location for maintenance of books of account? So firstly, the location, the books, that has to be maintained at the principal place of his business. एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा होगा? जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मैंशनड होगा दैट दिस इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. सो उस प्लेस ऑफ बिजनेस में, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में द बुक्स हैज़ टू बी मेंटेन्ड वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस. सो फॉर एग्जाम्पल where for example, of course there may be a different branches, so there are more than one place of business. All right, in registration certificate, the account relating to each place of business shall be kept at such place of business. What did I just say? If there are more than one place of business, then the account relating to each place of business shall be kept at such place of business itself. जिस place of business का जो accounting है उसको उधर ही रखो, इधर से उधर करो मत. Single entity with multiple place of business. Now एक entity है जिसका बहुत सारा place of business बहुत सारा है, single entity है. So let's say रोशनी लिमिटेड है. रोशनी लिमिटेड का place of business महाराष्ट्र में, then गुजरात में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में. So I've got different multiple place of business. ठीक है, I've got multiple place of business. महाराष्ट्र में ही मेरे 10 place of business है अलग अलग cities में. So now single entity है रोशनी लिमिटेड, multiple place of business है. So where do I maintain my books? This is the question. So अगर रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हुआ है, हर एक बिजनेस का डिफरेंट रजिस्ट्रेशन किया है. रोशनी लिमिटेड महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में ही रोशनी लिमिटेड है, तो रोशनी लिमिटेड का महाराष्ट्र का अलग, तमिलनाडु का अलग, यूपी का अलग, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर मैंने लिया है तो ईच GSTI डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन मानेंगे. इतना सबको पता है कि
अगर रोशनी लिमिटेड है, रोशनी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के लिए अलग जीएसटी आइन लिया है, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के लिए अलग लिया है, तो आई वुड बी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, I would be deemed a distinct person for those particular states. So in that case separate compliance required होगा and each registered person maintain separately. मतलब ये मैं अगर मेरा जहाँ GST आइन अलग अलग हो जाता है तो हर प्लेस ऑफ बिजनेस का जो GST आइन होगा उस हिसाब से मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा. अगर सिंगल GST आइन है, सिंगल GST आइन मतलब रोशनी लिमिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, ऑल ओवर द इंडिया चल रही है, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड तो छोड़ दो, ऑल ओवर इंडिया चल रही है, सिंगल जीएसटी आइन पे चल रही है, इन दैट केस सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन एट सच प्लेस. अगर अच्छा ये भी तो दो चीज़ें होंगी ना, अगर मेरे पास सिंगल जीएसटी आइन है, ठीक है, सिंगल जीएसटी आइन है मतलब मेरे पास सिंगल रजिस्ट्रेशन है सारे प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए. अगर सिंगल जीएसटी आइन है और सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस है, रोशनी लिमिटेड का एक ही जीएसटी आइन है और रोशनी लिमिटेड पुणे में है, फॉर एग्जांपल पुणे में उसका बिजनेस है, सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो मेंटेन करूँगी पुणे में जहाँ पे वो बिजनेस होगा. एंड सिंगल जीएसटी आइन तो है मेरा लेकिन मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है. भाई मेरा सिंगल जीएसटी आइन है लेकिन पुणे में, मुंबई में, नागपुर में है, फिर उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है. इन दैट केस मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि मैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो मेंटेन करूँगी ही करूँगी एंड ईच प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंटेन करूँगी. सो आई होप दिस पॉइंट वॉज क्लियर. आई रिपीट इट अगेन. लोकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ऑब्वियसली इट इज़ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो क्या, तो यू हैव टू चेक कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है या सिंगल रजिस्ट्रेशन है. मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो हर एक प्लेस पे करो, सेपरेट रिक्वायरमेंट आ जाएगा. अगर जीएसटी आइन ही डिफरेंट है भाई, अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी आइन आप करके डीम डिस्टिंक्ट पर्सन बन रहे हो, तब तो आपको सेपरेटली सब कुछ सेपरेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप सिंगल जीएसटी आइन पे चल रहे हो और सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस है तब तो अब उस बिजनेस वाले प्लेस पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन सिंगल जीएसटी आइन है और मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, सिंगल जीएसटी आइन है और मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इन दैट केस प्रिंसिपल वाले पे भी करूँगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी करूँगी एंड ईच प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी करूँगी. तो सिंगल जीएसटी आइन है, रोशनी लिमिटेड का सिंगल जीएसटी आइन है, बहुत सारी जगह पे ऑल ओवर इंडिया चल रही है. तो जो मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो है मुंबई में तो करूँगी. बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये वो दुनिया भर के जितने भी मचांड है सब जगह मैं अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्या करूँगी बेटा, मेंटेन करूँगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो इतना समझ गया कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट हमको मेंटेन करने. अगेन सो 35(1) के हिसाब से एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, balance stock of goods, ITC availed, output tax paid or payable, others as may be prescribed. Now these two books of account, which is balance stock of goods and output tax paid or payable, the composition, the taxpayer under composition scheme, they do not have to maintain these two books when it comes to accounts and records, or like when it comes to maintenance of book by the registered person. Of course they are also a registered person but not under the main scheme, but the compensation levy, so compensation scheme वाले जो भी है, composition scheme वाले जो भी है, they do not have to maintain these two book, which is balance stock of goods and output tax paid or payable. Alright, so we are done with this one, quite done with this one. Now we're gonna move forward with rule 57. Rule 57, what does it say basically? So rule 57 इतना सा कहता है अपने को that procedure for maintenance, alright, for mode भी ये 35 में ही जा रहे हो अभी तक आप. So procedure for maintenance of account क्या होगा, तो आप मैनुअल या फिर इलेक्ट्रॉनिक एट द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन आप बना सकते हो बुक्स, कोई दिक्कत नहीं है. मैनुअल बनाओगे तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक बनाओगे तो भी चलेगा, एट द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, आपकी मर्जी है. नाउ रूल 57 इतना सा बोल रहा है दैट प्रॉपर बैकअप ऑफ ई रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन. भाई आप ई रिकॉर्ड आप बना रहे हो इलेक्ट्रॉनिक बुक, अब आपको प्रॉपर बुक बैकअप आप रखना है, वो जिम्मेदारी आपकी है. अपॉन डिमांड रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक अवेलेबल रिकॉर्ड्स, मतलब जब डिमांड किया, जब डिमांड आया आपको कमिश्नर की तरफ से, रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू मेक दोज रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन हार्ड कॉपी एज वेल एंड इन सॉफ्ट कॉपी एज वेल. अपॉन डिमांड या फिर एक्सेस टू ई रिकॉर्ड शैल बी प्रोवाइडेड एंड पासवर्ड शैल बी शेयर्ड. तो डिमांड किया तो एक्सेस दे दो ई रिकॉर्ड्स का, और ऑफकोर्स पासवर्ड तो दोगे तभी तो चलाएंगे वो लोग. सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू टिल रूल 57 ईयर. अब
ऑडिट का तो खैर कोई बात ही नहीं है, ऑडिट तो अब आएगा ही नहीं, काम का ही नहीं ऑडिट, बट वी कैन चेक कि रजिस्टर्ड पर्सन है अगर तो उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना है क्या। तो बेसिकली कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, उनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, तो दे आर हैविंग एन ऑप्शनल फॉर दीज ईयर्स, नहीं फाइल किया तो चलेगा। एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ है तो कंपलसरी एनुअल रिटर्न फाइल करना है। एंड एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तभी भी कंपलसरीली फाइल करना है। मतलब 2 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या उसके ऊपर है तो फिर आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करनी है। नाउ पावर ऑफ कमिश्नर, व्हाट आर द पावर ऑफ कमिश्नर ओवर हियर। तो पावर ऑफ कमिश्नर में सिर्फ इतना कहा है कि कमिश्नर के पास ना 35(3) एंड 35(4) के अंदर पावर है कि वो एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट कमिश्नर और अबव द कमिश्नर ऑफिसर मे नोटिफाई क्लास ऑफ पर्सन फॉर एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट। वो बोल सकता है कि ये, अभी तक हमने किसकी बात की, अभी तक हमने वेयर हाउस वाले की बात की थी, रिमेंबर कि वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टर, गोडाउन कीपर, तो इनको ये मेंटेन करना है। तो जैसे वेयर हाउस, गोडाउन कीपर, ओनर के लिए ये सब बोला है, तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल के लिए नहीं रूल बना सकता? ऑफ कोर्स बना सकता है। वही बोला है दैट कमिश्नर और अबव एंड कमिश्नर ऑफिसर मे नोटिफाई क्लास ऑफ पर्सन फॉर एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज अंडर 35(3). 35(4) रिलैक्सेशन भी दे सकता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ट्रांसपोर्टर को ये नहीं करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टर को ये फाइल नहीं करना, तो नहीं करना, बोल दिया ना, रिलैक्सेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। 35(4) के अंदर भी दिया नहीं है, दे सकता है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। पेनल प्रोविजन क्या है, अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो 35(1) एंड 2 में, देन पनिशमेंट अंडर सेक्शन जो 73 और 74 सेक्शन में वो सेम आपके ऊपर मुटेंडिस अप्लाई हो जाएगा, विच इज़ डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर में जो है। Now we're gonna do section 36 which says time limit for maintaining books of account. So time limit क्या होगा books of account maintain करने का, कि कब तक आपको books of account maintain करके रखना है। So 72 month in case of 35(1). 35(1) में जो बुक्स दिए थे फ्रॉम ड्यू डेट, तो जो बेसिकली 35(1) में जो बुक्स दिए थे, कौन कौन से बुक्स थे वो रिमेंबर? प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पहला था, उसके बाद सेकेंड था, सेकेंड कौन सा था, एक तो हो गया सेकेंड था, सॉरी दैट वाज बैड। ऑलराइट, सो सेकेंड था आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पे, आउटवर्ड टैक्स पेड और पेबल, ठीक है। फिर था ITC अवेल्ड, ठीक है। फिर फोर्थ था एक तो अदर्स था, अदर्स डाल दिया, 2 छूट गए हमारे, 2 छूट गए, कौन कौन से थे वो, कौन से छोड़े हमने, कौन से छोड़ दिए भाई साहब हमने? प्रोडक्शन, अच्छा एक ये भी था ना, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई था, एंड बैलेंस स्टॉक ऑफ गुड्स। सो दीज आर द बुक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि इन बुक्स को कब तक प्रिपेयर करना है, कब तक मेंटेन करके रखना है। तो 72 मंथ्स इन केस ऑफ 35(1), 72 मंथ्स फ्रॉम वेयर, सो फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल GST रिटर्न, या फिर अगर आपका जो केस है वो अपील या रिविजन में गया है, सो 1 ईयर फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अपील या फिर रिविजन, विच एवर इज लेटर, दोनों में से, दैट टिल देन यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो आई हैव गिवन द एग्जाम्पल। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न वॉज लाइक 31 मार्च 2022। वहाँ से 6 ईयर्स कैलकुलेट करो ये डेट, या फिर who is a party of an appeal revision 1 year after disposal of the appeal, or 72 months 6 years from due date of annual GST return. So 1 year from disposal of appeal. So for example देखना, यहाँ पे दिया है मैंने, यहाँ पर देखना केस डिस्पोजल डेट ये है 30/6/2028। यहाँ से 1 ईयर ऐड करोगे, सो दिस वुड बिकम 30/6/2029, एंड 31/12/2022 में 6 ईयर्स ऐड किया, सो दिस बिकम दिस वन। सो विच एवर इज लेटर, सो 31/12, ये क्यों रॉन्ग लग रहा मुझे, केस डिस्पोजल डेट है 30/6/2028, इसमें 1 ईयर ऐड करेंगे ना, सो इधर बकायदा 29 आना चाहिए था। अच्छा, ये 1 ईयर ऐड करके दिया हुआ है, होल्ड ऑन, देखो यहाँ पे बराबर है, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखना,
30 जून 2026 प्लस 1 ईयर, तो 27 आ गया यहाँ पे 6 years ऐड किया, 28 विच एवर इज लेटर. Alrighty. So this would become the so till here you have to maintain the books of accounts. So we are done with the chapter. We are quite done with this chapter. Now we're gonna do rule 56. Hold on. So let's understand rule 56 of CGST rules, which deals with maintenance of account by registered persons. तो इसको कैसे maintain करना है, इसके लिए क्या करना है. So क्या दिया है यहाँ पे, that every registered person shall keep and maintain in addition to particulars mentioned in 35(1) अ ट्रू एंड, मतलब कि 35(1) में जो बोला है वो तो मेंटेन करना ही करना है, उसके अलावा क्या बुक्स आपको मेंटेन करनी है. सो इफ़ यू रिमेंबर 35(1) में ये बोला था ना कि ये सारी बुक्स मेंटेन करनी है एंड अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो ये जो अदर्स वाला है ना, दिस हैज़ कम फ्रॉम दिस वन. सो दिस हैज़ कम फ्रॉम रूल कि अदर्स वाला जो बोला है, अदर्स जहाँ जहाँ पे दिखता है ऑफकोर्स वो रूल्स में ही आते हैं, वी ऑल नो दैट. सो दिस इज़ रूल 56. ये जो अदर्स वाले पॉइंट है ना, ये रूल 56 के है. आई होप दिस इज़ विजिबल. अब इसमें अदर्स में क्या क्या मेंटेन करने बोला बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आपने किया है, उसके बुक्स. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके बुक्स. सप्लाई कवर्ड अंडर RCM है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो. एडवांस आपने रिसीव किया है या एडवांस पे किया है, तो उसके डिटेल्स. नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर एंड वेयर हाउस कीपर ट्रांसपोर्टर. ये डिटेल्स जो है वो एडिशनल डिटेल्स है अपार्ट फ्रॉम 35(1). सो रूल 56 सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा है दैट अपार्ट फ्रॉम 35(1) में जो मैंशन था, उसके अलावा आपको क्या क्या मेंटेन करना है. सो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट सेड राइट नाउ. गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, और टैक्स पे क्या था, टैक्स के बारे में क्या था, टैक्स के बारे में था, होल्ड ऑन, टैक्स के बारे में कुछ था नहीं. सप्लाईज कवर्ड अंडर RCM था, एडवांस रिसीव एंड एडवांस पेड एंड देन एड्रेस ऑफ सप्लायर रिसीवर, ये था. इसमें टैक्स दिया हुआ है, ठीक है. बट अच्छा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज है, माई बैड. सो RCM की बातें कर रहा है सर. सो गुड और सर्विसेज एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड, RCM में जो है वो इंक्लूडिंग इनवॉइसेस, बिल्स ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट डेबिट नोट्स, पेमेंट वाउचर्स एंड रिफंड वाउचर्स एंड एक्सेट्रा लाइक दैट. फिर बोल रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन टैक्स, अदर देन मतलब कि सारे रजिस्टर्ड पर्सन को ले लो, लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स वगैरह उसको छोड़ के, शैल मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ स्टॉक. तो ये चीज़ तो हमको पहले भी क्लियर थी ना कि जो बैलेंस स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन करना है वो कंपोजिशन स्कीम वाला नहीं मेंटेन करेगा. तो वही चीज़ अगेन बोलिए. सच अकाउंट शैल कंटेन पर्टिकुलर ऑफ ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, सप्लाई, गुड्स लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैम्पल, एंड द बैलेंस ऑफ स्टॉक इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्क्रैप एंड वेस्टेज देयर ऑफ. तो इफ़ आई कंक्लूड दिस राइट नाउ ओवर हियर, व्हाट डिड वी स्टडी कि 35(1) में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वो तो मेंटेन करने ही है. उसके अलावा रूल 56 में कुछ अकाउंट्स और दिए जो हमको मेंटेन करने, विच इज़ नथिंग बट दिस वन. Goods and services imported, exported, supplied covered under RCM, advance received as advance paid, name address of supplier, receiver, warehouse keeper, transporter, ये आएगा आगे. तो ये सारे अपार्ट फ्रॉम द 35(1) वाले जो है उसके अलावा ये मेंटेन करने हमको. ये चीज़ हमने पढ़ी थी बेटा, दैट बैलेंस स्टॉक ऑफ गुड्स या फिर आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, दीज टू आर नॉट टू बी मेंटेन्ड इफ अंडर कंपोजिशन स्कीम रजिस्टर्ड हो. तो यही चीज़ अभी आप सेकेंड वाले लाइन में पढ़ रहे हो कि जो कंपोजिशन रजिस्टर्ड वाला है, जो ऐसा टैक्स पेयर है जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने वाला है, तो उसको बेसिकली ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना है. तो क्या कि बैलेंस स्टॉक ऑफ जो भी गुड्स है उसका ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स कितने हैं, सप्लाई कितने किए, गुड लॉस कितने हुए, स्टोलन कितने हुए हैं, रिटर्न ऑफ कितने किए, कितने आपने फ्री सैम्पल दे दिए, ये सारा बेसिकली स्टॉक को आपको एकदम डिस्क्राइब कर देना है डिटेल में. ठीक है, इतना समझ में आया. नाउ 56 का 3 वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कीप एंड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव. अच्छा ये अभी नहीं किया हमने, सेम चीज़ की ना भाई, एडवांस रिसीव्ड एंड एडवांस पेड. तो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने, ये थोड़ा बड़े में थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है. बार बार एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो हमने शॉर्ट कर लिया उसको. सेम चीज़ वापस दे दी है
every registered person other than person paying tax under section 10 shall keep and maintain an account containing the details of tax payable या फिर tax paid, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि ये दोनों चीज़ें, एक तो ये tax payable paid वाला एंड आउटस्टैंडिंग स्टॉक, ये वाले दो कंपोजिशन वाले मेंटेन नहीं करेंगे। तो उसके अलावा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेन करेंगे। बस वही चीज़ यहाँ पे बताई है ये लोग ने, बड़े बड़े में, मैंने छोटे में बता दिया था। फिर हमने ये वाला पॉइंट भी किया है दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप द पर्टिकुलर्स ऑफ name and complete address of supplier from whom he has received the goods or services chargeable to tax under the act, name and complete address of the person to whom he has supplied the goods। तो एक तो सप्लायर आ गया, एक रिसीवर आ गया, ठीक है। फिर एक है द कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रेमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट पर्टिकुलर ऑफ स्टॉक, मतलब वही वेयर हाउस, ये वो, तो वही चीज़ तो हमने बताई थी। अब ये देखना यहाँ तक पूरा समझ में आ जाएगा। गुड सर्विस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टेड, ये पहले लाइन में था। आरसीएम भी पहले लाइन में था। एवरी पर्सन अदर देन कंपोजिशन वाले में एडवांस रिसीव एंड एडवांस पेड था, ये पॉइंट था। नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर, रिसीवर, वेयर हाउस कीपर, ट्रांसपोर्टर, ये 4 पॉइंट हो गए, ये 4 पॉइंट थे। उसके अलावा एवरी पर्सन अदर देन पर्सन अंडर सेक्शन 10 पेइंग कंपोजिशन टैक्स वाला, तो वो बैलेंस स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन नहीं करेगा, बाकी लोग करेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, गुड कितना स्टोलन है, कितने रिसीव, कितने सप्लाई के हैं। एंड आउटपुट टैक्स पेड और पेबल में भी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन करेंगे अदर देन सेक्शन 10। तो ये टोटल बना के ये लोग ने 7 पॉइंट्स बना दिए, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में दे दिया इधर। फिर एक नया पॉइंट है कि अगर कोई भी टैक्सेबल गुड्स आर फाउंड टू बी स्टोर्ड एट एनी प्लेस अदर देन दोज डिक्लेयर्ड अंडर सब रूल 5 विदाउट द कवर ऑफ एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब आपने किसी डिफरेंट प्लेस पे कोई भी गुड्स रख दिया है किसी अलग वेयर हाउस पे, जिस पे आपने टैक्सेबल गुड्स रखा हुआ है, ठीक है, और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास कि ये गुड्स कहाँ से आया, क्या है, या किधर जा, मतलब ऑब्वियसली होगा भी तो, बट यू नो वो स्मगलिंग का केस है या ऐसा कुछ, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर कुछ नहीं करेगा, उस पर टैक्स लगा देगा, ख़त्म। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, देन every registered person shall keep the books of account at the principal place of business and books of account relating to additional place of business mentioned in his certificate of registration, and such books of account shall include any electronic form। ये तो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, so done। any entry in registers, यहाँ से देखना, I hope this is visible again। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट एनी एंट्री इन रजिस्टर एवरी एनी माय बैड ऑलराइट। So any entry in registers, accounts and documents shall not be erased, effaced or overwritten, and all incorrect entries otherwise than those of clerical nature, कुछ है तो समझ में भी आता है, shall be scored out under attestation and thereafter the correct entry shall be recorded where the registered and other documents are maintained electronically। a log of every entry edited or deleted shall be maintained। अब ये क्या बोला है देखना, अगर कोई भी रजिस्टर आप में आप एंट्री मेंटेन कर रहे हो अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, तो वो इरेज नहीं कर सकते, आप इफेज नहीं कर सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते। एंड अगर आपने बाय चांस कोई एंड ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदरवाइज देन दोज ऑफ क्लरिकल नेचर, मतलब क्लरिकल नेचर है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपने कोई इनकरेक्ट एंट्री डाल दी है गलती से, शेल बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन एंड दे आफ्टर द, मतलब आप उसको स्कोर आउट करो अंडर अटेस्टेशन कराना पड़ेगा उसका, एंड देयर आफ्टर द करेक्ट एंट्री shall be recorded and where the register and other documents are maintained electronically। a log of every entry edited, जो कोई भी एंट्री आप एडिट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो उसका आपको डिटेल्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। now each volume of books of account maintained manually by the registered person shall be serially numbered। ठीक है भाई, unless proved otherwise, if any document, register or any books of account belonging to a registered person are found at any premises other than those mentioned in the certificate of registration, they shall be presumed to
बी मेंटेन्ड बाय दैट सेड रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब किसी और प्रेमाइस पे मिला जो कि आपको उस प्लेस पे नहीं मिला जहाँ पे बोला था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट में बोला उस प्लेस में नहीं मिला, तो जिस प्लेस ऑफ बिजनेस में मिला हम ये मान लेंगे कि उसने ही प्रिपेयर किया हुआ है। आफ्टर दिस वी आर डूइंग रूल 56 का 11 itself. I think this is visible. Yep. अब देखना ये क्या कह रहा है. So every agent referred to in clause 5 of section 2 shall maintain the accounts depicting what is this? How do you pronounce this as? I think this is depicting. So every agent referred under this one have तो basically अभी क्या करना है, particulars of authorization received by him from each principal to receive or supply goods or services on behalf of such principal separately. Then particulars including description, value and quantity wherever applicable of goods or services received on behalf of every principal. Particulars including description, value and quantity wherever applicable of goods or services supplied on behalf of every principal. Details of account furnished to every principal and tax paid on receipt or on supply of goods or services. ठीक है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो बेसिकली इसमें से इतना कहा है दैट एवरी एजेंट, अगर कोई एजेंट है आपका, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का कोई एजेंट है, इतना समझ में आया कि मैं ओनर हूँ, मेरा कोई एजेंट है। नाउ व्हाट ही वुड डू इज पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फॉर फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल सेपरेटली। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि वो एजेंट जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स के गुड को वो पर्टिकुलर स्टोर में सेल कर रहा हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ ईच प्रिंसिपल सेपरेटली, वो उसको पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के बिहाफ में उसको कितने क्वांटिटी में गुड्स रिसीव हो रहे हैं, सर्विसेज रिसीव हो रहे, सप्लाई कर रहा है, या फिर वैल्यू एंड क्वांटिटी पता होना चाहिए हर एक प्रिंसिपल से। एवरी पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो ये पॉइंट सेम नहीं हो गया? अच्छा, ये रिसीव्ड था कि एक प्रिंसिपल से उसको कितने गुड्स या फिर सर्विसेज रिसीव हो रहे हैं, और एक प्रिंसिपल से, पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल से उसको कितने गुड्स और सर्विसेज, उनका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी सप्लाई हो रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल, डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, जो फर्निश करा डिटेल्स ऑफ अकाउंट, ये सारी बेसिकली डिटेल्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। टैक्स पेड ऑन रिसीप्ट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। देखना, यहाँ पर एक एजेंट है, एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है, तो एक एजेंट है जिसके मल्टीपल प्रिंसिपल है, तो सारे प्रिंसिपल का ऑथोराइजेशन लेके रखेगा फर्स्ट। सेकेंड, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, मतलब ऐसे क्या पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, उसको इतने रिसीव हुए, इतने वो सप्लाई कर रहा है, और जो उसने डिटेल्स फर्निश किए एवरी प्रिंसिपल को वो, एंड टैक्स पे किया उसने ऑन एवरी रिसीट और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो ये डिटेल्स उसको मेंटेन करना पड़ेगा बेटा, किधर, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, ओका। उसके बाद बोला है दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज शैल मेंटेन द अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज्ड इन माय गॉड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स शैल मेंटेन। अच्छा, अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो मैन्युफैक्चरर है बेसिकली गुड्स का, सो ही हैज़ टू मेंटेन द मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग और क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ दिस वन। सो बेसिकली अब जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहा है, अब जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहा है। तो उसमें क्या आ गया देखना, यहाँ पर एक तो उसने बात कर ली यहाँ पर मैन्युफैक्चर की। अगर रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर है तो क्या, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर है तो क्या, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है सर्विसेज तो क्या, फिर रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो क्या, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये तीनों है पहले तो। उसके बाद तो नहीं है इतना कुछ।
तो ये तीनों के बारे में बोला है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरर है तो क्या, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है सर्विसेज तो क्या, और रजिस्टर्ड पर्सन अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो क्या क्या मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरर है तो मेंटेन करना पड़ेगा मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ रहा है या फिर सर्विसेज यूज इन मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द गुड्स सो मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग द वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट देयर ऑफ। बेसिकली फैक्ट्री में आपका जो भी मंथली प्रोडक्शन है आपको वो बताना पड़ेगा, कितना वेस्ट निकल रहा है, कितने रॉ मटेरियल ला रहे हो, कितने सर्विसेज जा रहे हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज, अब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सप्लाई कर रहा है सर्विसेज शेल मेंटेन, सो बेसिकली व्हाट आई एम गिविंग टू यू राइट नाउ, आई एम गिविंग यू सर्विसेज ओनली ना, आई एम गिव am I sending you any gift? So if you're watching my video on YouTube and you're taking a service from me, it's the different thing that I'm not charging any consideration now, but it's a kind of service. So every registered person supplying service, so let's say I am a registered person under GST and I am supplying the services to you all, so I have to maintain the account showing quantitative details of good used in the provision of services, details of input services utilized and the service supplied. तो अब मेरे को क्या बताना पड़ेगा, so I am a registered person and I am supplying a service to you all, so I have to maintain what, I have to maintain the account showing quantitative details of goods used in the provision of service. तो आपको सर्विस देने के लिए मेरे को कौन कौन से गुड्स यूज़ करने पड़े, so for making this video I have to use my camera, I have to use my projector, I have to use a particular room, and that, let's say it is on rent, so this is kind of goods that I am using right now. It is a kind of goods that I'm using right now to provide a service to you all. So quantitative details देना पड़ेगा मुझे, मेंटेन करना पड़ेगा कि ये सर्विस देने के लिए इतने इतने मैं मेंटेन कर इतने इतने गुड्स मेरे को यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। एक स्टैंड भी लग रहा है ऑब्वियसली, मोबाइल स्टैंड, कैमरा स्टैंड, वट एवर यू कैन से। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस थिंग। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूटिलाइज्ड, डिटेल्स ऑफ जो आपने इनपुट सर्विस यूटिलाइज की है वो, एंड सर्विस सप्लाई की है वो भी आप वो किसको मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, आपको सप्लाई करी हूँ सर्विसेज, ठीक है। Now every registered person executing work contract shall keep separate account for work contract showing the name and address of the person on whose behalf the work contract is executed, description, value and quantity wherever applicable for goods and services received for the execution of work contract, description, value and quantity goods or service utilized in the execution, details of payment received in respect of each work contract, name and address of the supplier from he has received the goods। तो ये कुछ नहीं है, अगर आप इसको सिंपल वे में देखोगे, और इफ़ आई कैन कंक्लूड इन अ सिंपलर वे, तो सिर्फ इतना कहा गया है। पहले तो देखना ये सेम है, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी। फिर ये तो पेमेंट रिसीव कितना किया है, एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर देना है फ्रॉम whom he has received the goods। ये समझ में आया कि नेम एंड एड्रेस देना है मुझे, नेम एंड एड्रेस किसका देना है, ऑन पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम whom he has received the good। For description, value and quantity of what goods or services received for the execution of work contract, description, value and quantity of goods or services utilized in the execution of work contract, detail of payment received in respect of each work contract। So these are the details has to be maintained by work contractor। उसके बाद क्या दिया है, पर टोटल कितने हैं इसके, 18 सबसेक्शन सब रूल्स है, माय बैड। 15 में क्या बोला है, द रिकॉर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर में भी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बना सकते हो, एंड ऑथेंटिकेशन बाय मीन्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टुगेदर विद ऑल द इनवॉइसेस, बिल्स ऑफ सप्लाई, क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान रिलेटिंग टू स्टॉक डिलीवरीज, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई शेल बी प्रिजर्व फॉर द पीरियड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 36 जो कि 72 मंथ्स है, राइट। एंड शेल वेयर सच अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड manually not annually, so be kept at every related place of business mentioned in this. Any person having custody over the goods in capacity of a carrier, of a clearing and forwarding agent or delivering this. I don't think so this is important. Every registered person shall on demand produce the books of account which he is required to maintain. No, so this was the rule 56, and we are quite done with the topic which is accounts and records. I hope you really like the video because I have given the full exposure. Keep following my channel for such videos. Thank you.